اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسی طرح میرے بھائی انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتا ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتا ہے, اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ صرف ان کو پتا چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس. یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے, تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے, اور اس کے بعد جاپان ہے. آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کی کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, پتا ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نہ اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی, تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ہمارا. ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, وہ نیچے آ گیا, اس کی وجہ سے مسئلے. پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو. پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے, اتنا نیک آدمی, تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی, حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا. سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب آئے تھے, تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, کہاں نہیں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کو پتا چلا کہ 2 بندے ہیں. ہوا یہ ان کی خدمت میں 2 گورے لائے گئے. وہ گورے کیا تھے, وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے. جوان لڑکے تھے, شراب کباب دولت سب کچھ. تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو, ایک بزرگ آئے میں, تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے. وہ آ گئے,
اور اللہ کا शुक्र है खुदकुशी से भी बच गए, नेक बने, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी, पूरी जिंदगी तबलीग के लिए उन गोरों ने, स्विट्जरलैंड के गोरों ने वक्फ कर दिया। पता नहीं कहां कहां गांव देहातों में उनकी तश्कील हुई होगी स्विट्जरलैंड को छोड़कर। ऐसे तबलीग ने हजारों लोगों को खुदकुशियों से बचाया, हजारों को। टेंशन से बचाने का प्रोग्राम गोरे के पास नहीं है, मौलवी के पास है, समझते हो। मेरे व्लॉग पे ना कल किसी ने कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब के इतने बेगम, इतने बच्चे और फिर भी इतने खुश हैं। उनका ख्याल यह था ये तो इतनी जिम्मेदारियां, इतनी टेंशनों के बाद तो खुश रहना मुमकिन नहीं है। तो एक लाइफ स्टाइल ये कि टेंशनों के तमाम असबाब के बाद आप कह रहे हो कि खुश है। लेकिन मैंने जापानियों को देखा टेंशनों और स्विट्जरलैंड वालों को देखा टेंशन का कोई सबब नहीं है, फिर भी क्या है टेंशन में। इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है ना आपके और हमारे नजरिए में, कोई फॉल्ट है भाई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, ये बाद में आपने पैदा किया है। वो फॉल्ट ये कि आप नेचर से हटने में सुकून तलाश कर रहे हो और इस्लाम आपको नेचर की तरफ लेकर आ रहा है। बीवी बच्चे होना ये नेचर है इंसान की। ये टेंशन छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशनों से बचाती है। खानदान होना, मोहब्बतें मिलती हैं इससे इंसान को। औलाद होना, बच्चे होना, भतीजे होना, भांजे होना, पोते होना, नवासे होना, बाप होना, भाई होना, बहन होना, चाचे होना, मामे होना, ये नेचुरल है। और वो जो है ना स्विट्जरलैंड, मैं और मेरा पैसा, ये नेचुरल नहीं है। इसमें पैसा तो होगा, रिलेशन नहीं होगा, मोहब्बतें नहीं होंगी। इससे हमारा वो गांव देहात का आदमी अच्छा है जो मंजी पे बैठते दूध निकाल के पीता है और मक्खन पे जिंदगी गुजार देता है, वो ज्यादा खुश है। समझते हो, उसके रिलेशन मजबूत हैं, मोहब्बतें हैं। गांव देहातों में तो गया हूं मैं, जापान स्विट्जरलैंड भी गया हूं, तो मैं कच्ची आबादियों में भी टाइम गुजारा है हमने बहुत ट्रेवलिंग की है। आज से थोड़ी मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं, तो बचपन से ट्रेवलिंग कर रहा हूं। गांव देहातों में भी हमने टाइम गुजारा है, पहाड़ों पत्थरों में भी, बलूचिस्तान के खुश्क पहाड़ों में भी हमने टाइम गुजारा है। तो टेक्निकल फॉल्ट तो स्विट्जरलैंड का मैं जल्दी खत्म कर दूं ना पहले। तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, कोई उधर चिपका हुआ है, कोई उस बिजली के खंबे से, उससे बिजली का मसला भी क्या होता है। और उनको देख देख के जो नहीं चिपक रहे उनको भी चिपकने का शौक बोलो पैदा हो रहा है। तो मजबूर होकर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह किया कि यार एक काम जब हो ही रहा है तो तमीज से हो जाए, अच्छा नहीं। तो उन्होंने फिर लीगल कर दिया। उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसमें टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन में उसमें टाइम लगता है। वो कहते हैं आपने मरना ही है ना तो हम आपको बताएंगे कैसे मरना है, तमीज से मरो भाई। मरने का भी हर काम तमीज से होता है। हमारे यहाँ हर काम बदतमीजी से हो रहा है, क्या ख्याल है। गोरे में एक बड़ी क्वालिटी है, काम सही हो या गलत हो, लेकिन होता क्या है, लाइन में लग के तमीज से। उन्होंने कहा मरना है, जहन्नम में जाना है, लाइन में लग के जाओ जहन्नम में। ये नहीं उधर से पहले मैं कूदूंगा, तू पहले जहन्नम में कूदेगा। खुदकुशी करने वाला तो आग में जलता है। वो क्या काफिर जब खुदकुशी करता है तो कुफर का गुनाह भी और खुदकुशी का गुनाह एक अलग से मिलता है उसको। जिस खुदा ने तुझे पैदा किया था उस पर तवक्कुल क्यों नहीं किया तूने, उस पर एतमाद क्यों नहीं किया, दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों नहीं समझा, मेरी आयात पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो और जहन्नम की बड़ी आग में कूद रहा है। तो उन्होंने कहा तमीज से लाइन लगा के कूदो। ये हफरा तफरी, पहले मैं जहन्नम में घुसूंगा, अबू जहल से मैंने मुलाकात करनी वगैरह, मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मेरी मुलाकात कल की तय हो चुकी है और आप अभी वो कर रहे हो। तो वो कहते तमीज से आप सबको, फिरौन से, हामान से और अबू जहल से और नमरूद से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से, इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हमने पहले से एक अपॉइंटमेंट है। इतने आदमियों से फिरौन एक ही टाइम पे नहीं मिल सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे यहां भी खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। तो ये खुदकुशी करने वाला इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं गमों से जान छुड़ा के बच जाता हूं। और भाई तुम गमों से जान छुड़ाकर उससे बड़े गमों में अपने आप को धकेल देते हो। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के सामने ये उजर नहीं है कि मैं बेरोजगार था। एक शख्स ने नबी के दौर में जिहाद में जख्मी हुआ और जख्मों की तकलीफ की वजह से अपना गला काट दिया। नबी ने फरमाया जहन्नम में। जख्मों की तकलीफ कम होती है क्या? तो आप किस खुशफहमी में हो कि आप अपने आप को मार दोगे तो आप बच जाओगे? ना, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जहां गफूर रहीम है, अजीजुन ज़ु इंतकाम भी है, वो इंतकाम लेने वाला भी है। कत्ल चाहे किसी और का हो चाहे अपना हो, ये जान कि हम खुद मालिक नहीं है। गैर मुस्लिम कहते हैं मैं अपनी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गैर मुस्लिमों के नारे हैं। मुसलमान कहते हैं ना औरत के जिस्म पे उसकी मर्जी, ना मर्द के जिस्म पे उसकी मर्जी। ये हमें अल्लाह ने दिया है भाई। जब अल्लाह ने दिया तो वो जैसे कहेगा हम वैसे चलाएंगे विस्को। उसको कहना चाहिए मैंने विस्को, इसलिए लोग आजकल कह रहे हैं ये लफ्ज, कहते हैं ना विस्को, वब। एक साहब मुझे कहने लगे जब ये काम मैं करूंगा वब तुमने भी ये करना पड़ेगा। तो कुछ लुगतें हम लोगों से उधार ले रहे हैं। खैर, तो वो क्या किया, उन्होंने कहा भाई लाइन लगा के जहन्नम में जाए। अब क्या हो गया कि सेटअप पूरा बना दिया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन हो रही है। हम बिजली से मरना पसंद करेंगे या गैस से मरना पसंद, इज्तिमाई मरना। अल्लाह बचाए, मेरे को मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन अल्लाह हम सबको इस आजाब से बचाए। तो ये एक दूसरा पहलू है। ये क्या है भाई, एक दूसरा पहलू है। इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसमें क्या चीज है जो सबसे अहम, रिलेशन खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पैसा पैसा पैसा। अब लोग कह रहे हैं पैसा है तो अच्छी बीवी मिलेगी। गलत, 100% गलत है। मैंने एक बयान में कहा है कि पैसा होगा तो आपको अच्छी बीवी मिलेगी। उससे मुराद ये कि आप जिसको अच्छी समझते हो, मालदार को आप अच्छी समझते हो, तो वो पैसे वालों को ही मिलती है। लेकिन अच्छी जो शरीयत की नजर में अच्छी है,
भाई वो अगर पैसा दे के आ रही है तो इम्कान है अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। हमने बहुत सारे गरीबों में ऐसी वफादार औरतें देखी हैं। हमारे एक जानने वाले थे, उनकी डेथ हुई, बहुत गरीब रिक्शा चलाता था वो। जब उसके शोहर की डेथ हुई है, बूढ़े शोहर की, उसकी बीवी ने जाके उसके जूते सर पे रख लिए अपने गम से। हालांकि क्या घर में लाके कुछ टुकड़े भूसी टुकड़े खिला रहा था घर में लाके, लेकिन औरत को अपने शोहर से मोहब्बत थी कि मेरा जिंदगी इस शख्स के साथ मैंने गुजार दी, आज ये आंखें बंद करके दुनिया से चला गया। हमारे जिस दोस्त ने ये वाकया सुनाया, मैंने कहा यार ऐसी मोहब्बत अक्सर 100% नहीं, अक्सर मालदारों में हमें नहीं मिलती, अक्सर नहीं मिलती। पैसे के मालदारों में तो ऐसे केस आ रहे हैं कि शौहर के पास पैसा गया तो बेगम भी गई। अभी चंद दिन पहले हमारे एक जानने वाले मिले, पैसा था उनके पास, जब पैसा गया तो बेगम ने खुला लेके कोर्ट से पतली गली से निकल ली। वो बेचारा रो रहा है, मेरे सामने दुखड़ा सुनाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बेगम भी गई और बच्चे भी गए। कोर्ट ने यहां तक उसको कहा कि औरत को कहा कि देखो अगर शौहर गरीब हो गया है तो ऐसे मौके पे तो औरत शौहर का साथ देती है। औरत ने कहा नहीं, मैंने नहीं रहना। कोर्ट ने दे दिया खुला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं मिशकात में बहुत सारी हदीसें हैं जिससे पता चलता है कि ये खुला ठीक है। हालांकि एक हदीस ना मिशकात में ना बुखारी में। एक तो मंजन हर आदमी लेके बैठा हुआ है यूट्यूब पे, क्या करें। बयान के बाद में एक वाकया सुनाऊंगा, पिछले जुमे भी मैंने कहा था फिर भूल गया था। ये अदालती खुला पे एक वाकया जिससे जो मैं चीख रहा हूँ ना, ये खुला कलदम है, तो मैं बिला वजह नहीं चीख रहा। और मैं जब कॉन्फिडेंटली कोई दावा करता हूँ ना इतना, तो वो दावा गलत नहीं होता। लोग समझते हैं इसको क्या पता कुरान और हदीस का। हमने 8 साल में क्या घास खाई है मदरसों में? 8 साल तो पढ़ा है और उसके बाद 24 साल पढ़ाया है, तो कुरान और सुन्नत ही पढ़ाया है हमने, कुरान और सुन्नत ही पढ़ाया है। तो मैं जो दावा करता हूं ना, आमिल 2 नंबर होते हैं, तो इसका तो इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है, इसका तो ताल्लुक है मुशाहिदे से। एक बात, 3 तलाकें 3 ही होती हैं। तो मेरे खिलाफ बहुत सारे लोगों ने क्लिप बनाए कि ये बड़े बड़े दावे कर देता है और गलत है। तो वो जब मैंने दावा किया है ना, तो वो ऐसे ही दावा नहीं किया, उसके पीछे दलाइल की एक मजबूत ताकत है। कोई बैठे सामने तो बताएंगे हम आपको, और आप जो उल्टपटांग दलाइल दे रहे हो उनकी पोल पट्टियां भी खोलेंगे हम। सहाबा ताबईन में ये मसला इजमाई था, ये बाद में इख्तलाफ पैदा किया गया है। और इजमाई मसले कतई होते हैं, उनमें किसी से फतवा लेना जायज नहीं होता। कोई भी अहले हदीस अगर 3 तलाक कोई कहता है बीवी हलाल नहीं होगी, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, समझ रहे हो। और तीसरी बात, ये जो अदालत के खुले आजकल चल रहे हैं, इसमें कुछ खुला सही भी होते हैं जहां शौहर जालिम हो और सबूत से साबित हो जाए, और शौहर एक खास नौयत का जुल्म, थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हर घर में होती है। लेकिन जो ये कानून है कि औरत अपनी मर्जी से जब चाहे तलाक ले सकती है, तो ये ऑप्शन मर्द के पास है कि वो तलाक दे सकता है। उसको भी मना किया गया बिला वजह ना दे, लेकिन दे देगा तो हो जाएगी। औरत के पास अल्लाह ने तलाक का हक नहीं दिया। खुला एग्रीमेंट है, मियां बीवी की रजामंदी से होता है, शौहर राजी होगा तो होगा। हाँ, फस्खे निकाह, अदालत बाज दफा फस कर सकती है निकाह को, लेकिन वो चंद कंडीशन में कर सकती है, चंद कंडीशन में। यहां लोग कहते हैं ये फिक़ह हनफी हम पे थोप रहे हैं, मैं हनफी फिक़ह में तो है ही नहीं, बहुत सख्त शराइत हैं। हम तो इमाम शाफी, इमाम अहमद हंबल के भी फिक़ह को फॉलो कर लेते हैं इस मसले में कि चलो औरत को किसी तरह बहुत ब्रॉड माइंडेड करके हम कह रहे हैं, हम उसमें भी फतवा दे देते हैं। लेकिन जो आजकल अदालतों में सेटअप चल रहा है कि औरत गई, मुझे हर कीमत पे खुला चाहिए, और शौहर में कोई मौतद भी, कोई काबिल जिक्र जुल्म ना भी हो, ना वो साबित करे उसको, और अदालत पकड़ा दे। कानून तो यही है कि औरत अगर नहीं रहना चाहती उसके पास ये ऑप्शन है, जबकि शरीयत कहती है औरत के पास ना रहने का ऑप्शन नहीं है। उसकी मर्जी के बगैर निकाह तो नहीं होगा, लेकिन खत्म उसकी मर्जी नहीं, खत्म शौहर की मर्जी से होगा। अब आपको इस पे इस्लाम अच्छा लगे बुरा लगे, आपकी मर्जी, आप छोड़ दो इस्लाम को भाई, चले जाओ स्विट्जरलैंड, आप चले जाओ जापान इस्लाम छोड़ के, तो उनका हाल देखो क्या हुआ है। इसमें हिकमत क्या है कि औरत को शरीयत ने पाबंद क्यों किया है, ये हिकमतों पर मैं कई बार बयान कर चुका हूं। ये औरत के फायदे के लिए, क्योंकि अगर इसके अगेंस्ट चलेंगे ना, औरत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसमें क्या है वो तफसील से मैं बयान कर चुका हूं, अभी मैं वो टॉपिक नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अभी तो ये बताना मकसद है कि ये जो आजकल के नए नए स्कॉलर आ रहे हैं ना कि नहीं जी अदालती खुला औरत जब जाए तो वो ले सकती है, जज समझता है कि ये नहीं रह सकती एक्चुअली, तो छोड़ दो उसको। ये जज अपनी बीवी को छोड़ सकता है, दूसरों की बीवियों को छोड़ने का जज के पास कोई राइट नहीं है। अब मेरी बात खवातीन को बुरी लगती है तो मेरे खिलाफ बोलती है, भाई मेरे खिलाफ नहीं बोलो, अल्लाह रसूल के खिलाफ बोलो। मेरे ख्याल मैं तो कुरान बयान कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि वो फलाने स्कॉलर ने हदीस नंबर पेश की है, उसमें तो लिखा हुआ है खुला औरत खुद भी ले सकती है, फलाने वो नंबरों से मुतासिर कर रहे हैं। मेरे भाई आपको उस हदीस का तर्जमा पढ़ लो तो पता चल जाएगा, क्योंकि इन कम वक्तों को तर्जमे भी नहीं आते, तर्जमे भी गलत कर रहे होते हैं बहुत दफा। अरबी तो आती नहीं है इन लोगों को बेचारों को। तो कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें होता है कि जज के पास राइट है कि वो जब चाहे औरत को खुला दे सकता है, जब भी औरत जाएगी, ऐसे कोई हदीस नहीं है। इस्लाम में औरत बाउंड होती है, समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारी हिकमतें, औरत ही के फायदे के लिए ये हिकमतें। अगर खवातीन को ऐसे राइट दे दिया जाए ना तो खानदानी निजाम खत्म, वही जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाला हिसाब बन जाएगा आपका फैमिली सिस्टम की ऐसी की। फिर इन खवातीन को बुढ़ापे में पता चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी परसों की बात है, परसों तरसों की बात है, खातून ने कहा कि बच्चे मेरे जो है ना, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मैंने खुला ले लिया था, बच्चे भी लेके चली गई मैं, तो अब जो है ना मेरी बच्चियों की शादी नहीं हो रही और ये है, और मियाँ तो राब्ता कर नहीं रहा। मैंने कहा आपको जाना ही नहीं चाहिए था, बच्चों की खातिर गुजारा कर लेती आप। हर घर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है कि नहीं होती। उस वक्त तो बड़े मजे लगे हुए थे कि नहीं जी एक्चुअली ये थोड़ा सा खर्चा कम दे रहा है और ये यूं कर रहा है, तो
थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है। बच्चे भी छीन लिए, वह मर्द ने फिर बच्चे छोड़ दिए तो उसने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक, वो बेचारे ने पहले तो कोशिश की, नहीं मिले तो उसने कहा जाओ फिर। अब जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो ये माएँ क्या होती हैं, परेशान है। बच्चियों को तहफ्फुज बाप का काम है। तो बहुत बड़े मसाइल हैं भाई, आगे तो सारा सेटअप तबाह बर्बाद होने वाला है। इन स्कॉलर्स जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं ना, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो दावे हैं इन तिलों में तेल है नहीं, तो तलाकें तीन तीन ही होती हैं। इसी तरह तरावी भी 8 रकअतें नहीं होती, इसमें भी बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता हूं, ये पता नहीं बाद में निकाला है। लोग क्या कहते हैं, सऊदी अरब के मुफ्तियों के हवाले देते हैं कि सऊदी अरब, पहली बात तो कि सऊदी अरब के सारे मुफ्ती ये नहीं कहते। आप उन मुफ्तियों से मिले हो जो आपके मतलब की बात कर रहे हैं। अब मेरा इरादा है मैं सऊदी अरब जाके एक व्लॉग बनाऊं, वहां के दीनी मदारिस के, वहां के मेजॉरिटी उलमा क्या कहते हैं। सऊदी अरब के मेजॉरिटी उलमा 3 तलाक को 3 ही कहते हैं। सऊदी अरब के मेजॉरिटी उलमा 20 रकअत तरावी को 20 कहते हैं, क्योंकि हुकूमत में वो लोग ज्यादा आगे हैं जो फिक़ह हम्बली को से बहुत ज्यादा उन्होंने शुज़ूज़ इख्तियार किया है, तो वो हुकूमती लेवल पे आगे हैं, इसलिए उनकी बात आगे आती है। लेकिन सऊदी अरब तो बहुत बड़ा है भाई, हम तो सारी दुनिया से हर एक से मिलते हैं। तो सऊदी अरब के भी आज भी उलमा की मेजॉरिटी, जो वहां के मदारिस के जो सही उलमा है, वो फिक़ह हम्बली को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं तरावी 20 रकअत होती है और वो 3 तलाक को 3 मानते हैं। मेरा इरादा है मैं सऊदी अरब जाके व्लॉग बनाऊंगा तो वहां के उलमा की राय भी शाया करूंगा, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना। और दूसरी बात, अगर सऊदी अरब के सारे लोग भी कह दें भाई सऊदी अरब के उलमा क्या सहाबा से बढ़ गए, बोलो ताबीईन से बढ़ गए हैं क्या? ताबीईन में, सहाबा में कोई एक हदीस दिखा दो जिन्होंने 8 रकअत तरावी पढ़ी हो कभी। हजरत उमर से एक रिवायत है, वो ज़ईफ है, और उसके ज़ईफ होने के दीगर असबाब में एक बड़ी सबब यह भी है कि अगर हजरत उमर ने 8 पढ़ी होती ना, उस दौर में कहीं ना कहीं रूए जमीन पे 8 पढ़ी जा रही होती, कहीं भी नहीं मिलता हमें। फिर असलाफ ने तरावी को, तरावी का नाम जो दिया ना, ये देवबंदी बरेलवियों ने थोड़ी दिया है, तो असलाफ ने नाम दिया है। तरावी का लफ्ज बता रहा है कि 8 पे ये बैठता ही नहीं है। तरवीहा कहते हैं 4 रकअतों को, तरावी तरवीहा की जमा अक्सा है, बहुत सारी 4 रकअतों को तरावी कहा जाएगा। तो इसलिए जो आज क्या किया, उसका नाम चेंज करके सलातुल लैल कर रहे हैं उसको। सलातुल लैल भी तरावी ही है, जो भी रात में नमाज पढ़ी जाएगी वो तरावी ही, वो सलातुल लैल कहलाएगी। उसमें वितर भी है, उसमें तहज्जुद की नमाज भी, उसमें तरावी की नमाज भी। लेकिन वो सलातुल लैल जो नबी ने 3 दिन पढ़ी है जमात के साथ और फिर उसको छोड़ दिया, फिर हज़रत उमर ने उसको जिंदा किया, उस सलातुल लैल के बारे में आप कोई सही हदीस से दिखाओ जो बेगुबार हो, मुस्तरब भी ना हो कि नबी ने वो 8 पढ़ी हो, नहीं है आपके पास। तो ये आपकी फहम है कि आप तहज्जुद वाली हदीस को तरावी पे फिट करते हो, ये आपकी सोच है। तो आप कुरान और सुन्नत की जो तशरीह करते हो, उस तशरीह को आप उम्मत में नहीं मत थोपो। आप कहो ये मेरी पर्सनल राय है, तो ठीक है, आप अपनी राय पर अमल करें, हमें उस पर कोई कभी जो 8 पढ़ के जाता है हमने कभी रोका उसको, ठीक है, तुम्हारी राय है। उम्मत को आप वो बताओ जो सहाबा, ताबीईन और चारों इमामों की राय है, वो कुरान और सुन्नत को आपसे ज्यादा समझते थे। और अगर आपने उम्मत को सऊदिया के मुफ्तियों की राय देनी है, तो सऊदिया के आज के मुफ्ती भी हैं और सऊदिया के 100 साल पहले के मुफ्ती भी हैं, जो 1400 साल से चले आ रहे थे। 1400 साल से जो सऊदिया मुफ्ती चले आ रहे थे, वो तरावी को 20 रकअतें कहते थे और 3 तलाक को क्या कहते थे, 3। अभी मेरा 3 तलाक पे चैलेंज गया ना, बस ये करके बात खत्म करता हूं। चैलेंज गया ना, कहीं भी नहीं है 3 तलाकें एक होती हैं। उस चैलेंज के बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। एक ने कमेंट में किया कि जी मुफ्ती साहब, अब यूएई ने भी 3 तलाकों को एक किया हुआ है और इंडिया ने भी 3 तलाकों को एक कर दिया है, मिस्र ने भी 3 को एक कर दिया है। सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान के मुफ्तियों पर ही शामत आई हुई है, ये जुमूद से हटते नहीं है। शुक्र है इंडिया पाकिस्तान के मुफ्ती जुमूद से हटते नहीं है, वरना जो काम यूएई कर रहा है, दुबई अबू ज़ैबी कर रहा है, वो तुम्हें कुरान और सुन्नत लग रहा है। जो इंडिया कर रहा है वो क्या लग रहा है, जो खुलफाए राशिदीन, सहाबा, ताबीन, खिलाफत उस्मानिया, बनु अब्बास की खिलाफत, बनु उमैया की खिलाफत और तमाम फुक़हा, इमाम बुखारी भी उसी के कायल, मुहद्दिसीन भी उसी के कायल, ताबीन भी उसी के कायल, उसको तुम कह रहे हो देवबंदियों की राय है ये। तो बड़े मसाइल हैं, इसलिए मेरे भाई मंजनों से मुतासिर मत हो। कुरान और सुन्नत हम थोड़ी कहते हैं हमें फॉलो करो, देवबंदियों को फॉलो करो।